اگرچہ پاکستان کی اکثریت آبادی درمیانی آمدنی اور کم آمدنی والے گروہوں میں تقسیم ہے، لیکن کچھ مٹھی بھر طبقہ بڑے پیمانے پر دولت جمع کر رہا ہے۔ گلوبل ویلتھ انڈیکس، جو کہ دنیا کے تمام بزنس مین کی آمدنی کا حساب کتاب رکھتے ہیں، ان کے مطابق 2018 میں پاکستان کی ایلیٹ کلاس دولت کی کل گنتی صرف 0.1% تھی۔ اگرچہ فوربس 2019 کی فہرست میں ہندوستان کے 16 ارب پتی ہیں، لیکن ہمارے چند ہم وطنوں نے بھی اس فہرست میں جگہ بنا لی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین اپنا کاؤنٹ ڈاؤن، جس میں ہم دیکھیں گے پاکستان کے 10 سب سے زیادہ کامیاب بزنس مین اور سب سے زیادہ امیر ترین شخص۔ تو نمبر 10 پر ہم بات کریں گے طارق سہگل، جن کی مجموعی مالیت یا کل اثاثے 0.9 بلین ہے۔ ان کی آمدنی کا سورس کوہ نور میپل گروپس، سہگل موٹرز اور سجیل موٹرز، کوہ نور ٹیکسٹائل ملز اور بجلی کمپنی ہے۔ کوہ نور میپل کمپنی سہگل انجن اور سجیل انجنوں کے مالک طارق سہگل پاکستان کے سب سے مالدار 0.9 بلین ڈالر کے بزنس مینوں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر آتے ہیں۔ انہوں نے کوہ نور پاک الیکٹران اور کوہ نور کی بجلی کمپنی کی ٹیکسٹائل ملوں میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کا شمار پاکستان کے 10 بڑے امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو نمبر 9 پر ہم بات کریں گے رفیق محمد حبیب، جن کے پاس کل اثاثے 0.95 بلین ہے۔ 0.95 بلین ڈالر ذرائع آمدنی یعنی کہ سورس آف انکم جو ہے وہ حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب میٹرو، حبیب یونیورسٹی، انڈیکس موٹرز کمپنی۔ حبیب کے سرکردہ شخص کا گھر پاکستان کے کاروباری شخص میں سب سے مشہور نام ہے۔ کاروباری گروپ متعدد کمپنیوں کا مالک ہے، جیسے حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب میٹرو، حبیب پبلک اسکول، حبیب یونیورسٹی، انڈیکس موٹرز کمپنی اور بہت سی۔ رفیق ایم حبیب مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کے 9ویں امیر ترین آدمی ہے۔ تو نمبر 8 پر ہم بات کریں گے ناصر سچون، جن کی کل آمدنی یا مجموعی اثاثے 1 بلین ڈالر ہیں۔ ان کے ذرائع آمدنی یعنی کہ سورس آف انکم ان کا سچون پراپرٹیز ہے۔ ناصر سچون اپنے بھائی طاہر شون کے ساتھ چون پراپرٹیز کا مالک ہے۔ 1971 میں قائم ہونے والی اس کمپنی کو زبردست کامیابی ملی جب اس نے متحدہ عرب امارات کے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کا آغاز کیا۔ متحدہ عرب امارات میں کمپنی کو بہت سے ایوارڈز ملے، جن میں CNBC عربی پراپرٹی ایوارڈ اور بیسٹ وے آفس ڈیزائن ایوارڈ شامل ہیں۔ وہ 1 ارب ڈالر کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کے 8ویں بڑے اور بزنس مین اور امیر آدمی ہیں۔ تو نمبر 7 پر ہم بات کریں گے میاں محمد نواز شریف، جن کے کل اثاثے 1.4 بلین ڈالر ہیں۔ ان کے سورس آف انکم یعنی کہ ذرائع آمدنی شریف گروپ اور اتحاد گروپس ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی پاکستان کے ٹاپ 10 امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ استقامت کے ڈائریکٹر ہیں، جو پاکستان کے اسٹیل پروڈیوسر کی سر فہرست ہیں، لیکن شریف فیملی کھانے، چینی اور ٹرانسپورٹ کی صنعتوں میں بھی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اس کی مجموعی مالیت 1.4 بلین ڈالر تک ہے۔ تو نمبر 6 پر ہم بات کریں گے ناظرین ملک ریاض۔ ملک ریاض کی کل اثاثے 1.5 بلین ڈالر ہیں اور ان کی سورس آف انکم بحریہ ٹاؤنز ہیں۔ ملک ریاض ایک پاکستان ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں، بحریہ گروپ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ایک ناکام ٹھیکیدار پیدا ہوئے۔ اپنی کمپنی میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ملک ریاض میٹرک کے بعد اپنی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد بطور کلرک ملٹری انجینئرنگ سروس میں کام کرنا شروع کیا۔ اس نے وہاں اپنے رابطے قائم کیے اور نظام کے ساتھ کام کرنا سیکھا۔ بعد میں انہوں نے 1995 یعنی کہ 1995 میں حسین گلوبل کے بینصدی ایک تعمیراتی کمپنی قائم کی۔ ملک ریاض نے بحریہ فاؤنڈیشن کے نام سے مشہور پاکستان نیوی کے چیریٹی ٹرسٹ کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیے، جس سے بحریہ سٹی کے نام سے مشہور ایک کمیونٹی قائم کی جا سکی۔
जिससे वो अपने राब्तों की मदद से ताउन करते थे। 2000 की दहाई में पाक बहरिया ने पूरी शेयर होल्डिंग मलिक रियाज को मुंतकिल कर दी। तो नंबर 5 पर हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी, जिनकी कुल असासे 1.8 बिलियन डॉलर हैं। आमदनी का माखज यानी कि सोर्स ऑफ इनकम ज़राअत और रियल एस्टेट है। आसिफ अली जरदारी 1.8 बिलियन डॉलर के पाकिस्तानी सियासतदान हैं। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े 10 अमीर लोगों में से एक हैं। इससे कबल 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर भी 11वें सदर की हैसियत से खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। वो अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीके चेयरमैन हैं। बहरहाल सियासत में आने से पहले ही उन्होंने अपनी रकम तैयार करना शुरू कर दी थी। तो नंबर 4 पर हम बात करेंगे मियां मांशा, जिनकी मजमूई मालियत 2.77 बिलियन है और उनका सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आमदनी का माखज निशात ग्रुप, MCB लिमिटेड, आदमजी ग्रुप, निशात चोनिया ग्रुप, DG खान सीमेंट है। पाकिस्तान से पहले अरबपति हंगामा खेज 1947 की तकसीम के दौरान पैदा हुए, जब इनके वालिदैन मुसलमान खानदानों में शामिल थे जिन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान का सफ़र किया था। 1951 यानी कि 1959 में निशात मिल्स के साथ इनके वालिद और मामूने टेक्सटाइल में काम करते थे। मियाँ बरतानिया में कॉलेज पढ़ने चले गए। ग्रेजुएशन के बाद वो खानदानी कारोबार में शामिल हो गए। इनका निशात ग्रुप अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा कपास कपड़ों का बरामद कुंदा और मुल्क भर में सबसे बड़ा ब्रांड है। इसने पावर प्लांट, सीमेंट, इंश्योरेंस में भी सरमायाकारी कर रखी है। मुल्क में सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श निजी बैंकों में से एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB के मालिक हैं। वो लाहौर में मुकीम मल्टी नेशनल जमात निशात ग्रुप के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो नंबर 3 पर हम बात करेंगे सदरुद्दीन हाशवानी। उनकी मजमूई मालियत 3.4 बिलियन डॉलर है। इनके सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आमदनी का माखज मेरिट होटल, पर कॉन्टिनेंटल होटल, ओरिएंट पेट्रोलियम है। मिस्टर सदरुद्दीन हाशवानी ने 1960 में काटन में तजारत शुरू की थी और आज इनका सनती ग्रुप मुल्क के सबसे बड़े पोर्टफोलियो ग्रुप में से एक है। आज वो मेहमान नवाजी की सनत में दुनिया की अहम शख्सियात के तौर पर जाने जाते हैं। हाशिम ग्रुप की बुनियाद हाशवानी ने 1960 में रखी थी। वो एक आलमी कंपनी है जिसमें 20 से ज़्यादा आज़ादाना तौर पर चलने वाले कारोबार शामिल हैं। ये कंपनी 3 बड़े-आज़मों में काम करती है, जिसका सदर दफ्तर पाकिस्तान में है। इसके ग्रुप के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल और मेरिट होटल मेहमान नवाजी की सनत के लिए पाकिस्तान में इंडस्ट्री के मेयार के मुताबिक है। मिस्टर हाशवानी की कंपनी ने समाजी कारोबार में तोसी की, जहां इसने दुनिया भर में नाम रोशन किया। तो नंबर 2 पर नाज़रीन हम देखेंगे सर अनवर परवेज, जिनकी मजमूई मालियत 4.6 बिलियन डॉलर है। आमदनी का माखज इनके सोर्स ऑफ इनकम बेस्ट वे ग्रुप और UBL है। सर अनवर परवेज पाकिस्तान के सबसे बड़े दूसरे अमीर तरीन आदमियों में शामिल हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी बहुत सारी मेहनत और खलूस के साथ लिखी गई। बिल्कुल दूसरे कामयाब लोगों की तरह उन्होंने अपनी कामयाबी को 1% मौका, 99% नज़्म ज़ब्त और दयानदारी से मंसूब किया। अनवर परवेज 1935 में पंजाब के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। एक कम आमदनी वाले घराने में शामिल थे। वो नंगे पांव स्कूल जाते थे। वो 21 साल की उम्र में 1950 की दहाई में बरतानिया चले गए और ब्रेडफोर्ड में बस ड्राइवर की हैसियत से काम करने लगे। 5 साल तक ड्राइवर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने के बाद इनके पास इतने पैसे थे कि वो अपने दूसरे कुंबे के अफराद को भी बरतानिया ला सकें। ये बेस्ट वे कंपनी स्टील, बैंकिंग, पैकेजिंग और दवाई साजी की सनतों से भी निपटती है। इसके अलावा वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL में भी अहम शेयर्स होल्डर हैं। सर अनवर बरतानी के सबसे अमीर पाकिस्तानी हैं, जिनकी मालियत 4.6 बिलियन डॉलर है। तो नंबर 1 पर नाज़रीन हम देखेंगे शाहिद खान, जिनकी कुल आमदनी या कुल असासे 8.3 बिलियन डॉलर हैं। आमदनी का माखज यानी कि सोर्स ऑफ इनकम फ्लेक्स एंड गेट, जैक्सनविल जगुआर, फिल्म FC, तमाम एलीट रेसलिंग है। ये 4 इनके कारोबार
शाहिद खानदान पाकिस्तान में पैदा हुए थे। वो एक अमेरिकी ताजर हैं जिन्हें $8.3 बिलियन की मालियत के साथ 2019 में पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी करार दिया गया। खान का ताल्लुक लाहौर के दरमियानी तबके के घराने से था। वो 1967 यानी कि 1967 में आला तालीम के लिए अमेरिका मुंतकिल हो गए। उनकी पहली मुलाजमत एक मकामी रेस्टोरेंट में थी जहां वो बर्तन धोते थे और जहां उनको कीमत फी घंटे के लिहाज से मिला करती थी। शाहिद खान एक मजबूत इरादे और दिलकश शख्सियत के आदमी कामयाबी की तरफ गामजन थे। इसकी अपनी मर्जी के मुताबिक पिकअप ट्रकों और बॉडी शॉप की मरम्मत के लिए 1978 में विंटरक्रॉक और बम्पर बनाना शुरू किया। उसने 2 साल बाद फ्लेक्स एंड गेट कॉरपोरेशन को खरीदा। 1980 में उसने तंजीम में, जिसने पहले इंजीनियरिंग और डायरेक्टर की हैसियत से दाखिला लिया था, इस कंपनी के पास अब पूरी दुनिया में 66 प्लांट यानी कि 66 प्लांट्स और 24,000 यानी कि 24,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। MFL जैक्सनविल जगुआर के मालिक और इंग्लिश प्रीमियर लीग की नींव के फ़हीम FC ने 2019 के फॉर्ब्स अरबपति फहरिस्त में 61वें नंबर पर हैं। उन्होंने अपने बेटे टोनी खान के साथ ऑल एलीट रेसलिंग का भी आगाज़ किया है। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन और सबसे ज़्यादा अमीर तरीन लोग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।